Assalamu alaikum dear students. It's me Amjad Khan and you're watching my YouTube channel English with Amjad Khan. Dear students, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से सब्जेक्ट से अल्फ़ाबेट से और करते करते मैंने आपको बताया था कि व्हाट एवर द बेसिक्स थिंग्स आई एम टीचिंग यू, इसके बाद हम लोगों ने टेंसेस स्टार्ट करने हैं। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे करते कि सबसे पहले हम लोग टेंसेस स्टार्ट करते, at that time you would not be able to know that what is subject, what's object, what's predicate. So because of those things that you have learned each and everything, whether that is subject, that is predicate, that is verb, that is helping verb, or that is be form, whatsoever I have taught you, because of that, because you know that, therefore you are able to know the tenses, you are able to make the sentences as well. So one another thing, I had told you that we will start tenses as well. So today is the day when we have to start the tenses. Yes, in this lecture we will start the tenses. Tenses क्या होते हैं? First of all, I will tell you about tenses. What are the tenses? Tenses होते क्या है? Now see, the word I have written tense. I have written tense. In Urdu we call it ज़माना. इसको हम लोग क्या बोलते हैं उर्दू में? ज़माना बोलते हैं. So, ज़माना क्या होता है और टेंस क्या होता है? In this video we are going to learn that. First of all, if I tell you about the word tense, अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं word tense की, means in Urdu we call it as ज़माना, जिसको हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं? ज़माना बोलते हैं. We will learn that what is it, ये हमारे पास होता क्या है. So first of all, if I tell you about the history of tense, अगर मैं आपको history of tense बताता हूँ, and one thing more, in English language we have taken lots of words from the Latin words, or we can say also we have taken lots of words from other languages. So in this video I will tell you about the meaning of tense, and I will also tell that from which word have we taken this word. इस word को हम लोगों ने किस लफ्ज़ से लिया है. So first of all, the word tense. If I tell you about the word tense has been taken from which word? The word tense has been taken from the Latin word. From which word? From the Latin word. Okay, if you tell, so the word tense has been taken from which word? From the Latin word. हम लोगों ने tense को लातिनी ज़बान के लफ्ज़ से लिया गया है. So which one was the word? वो word कौन सा था? The word was tempus. हमारे पास जो लातिनी ज़बान के लफ्ज़, जो हमारे पास लातिनी ज़बान का लफ्ज़ था tempus, उससे हम लोगों ने क्या बनाया है? tense बनाया है. Now we have taken the word tense from, we can say, Latin word tempus. हम लोगों ने लातिनी ज़बान के लफ्ज़ tempus से एक वर्ड लिया है. तो इस tempus का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है period, time, or we can say age. So as I told you that we have taken the word tense from Latin word tempus, which means टाइम, पीरियड और एज. हम लोगों ने लातिनी ज़बान के लफ्ज़ टेम्पस से टेंस का वर्ड लिया है, और इस टेम्पस का मतलब या टेंस का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ टेंस और द मीनिंग ऑफ टेम्पस इज टाइम, पीरियड और एज, या एक टाइम या एक मुद्दत या कोई उम्र. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं. अब बात आती है कि वाई डू वी यूज टेंसेज, हम लोग टेंसेज इस्तेमाल क्यों करते हैं, एंड वाई आर द टेंसेज इंपॉर्टेंट इन आवर, वी कैन से, इंग्लिश ग्रामर. हमारे पास जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें टेंसेस ज़रूरी क्यों है, और हम लोगों ने टेंसेस बनाए क्यों हैं, या हम लोग टेंसेस किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. अबाउट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टेल यू अबाउट एनी एक्शन, अगर मैं किसी भी एक्शन के आपको बारे में बात करता हूँ, इफ आई टेल यू अबाउट एनी एक्शन, सो एट दैट टाइम, सपोज मैं एक्शन की बात करता हूँ कि मैं स्कूल गया, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाऊँगा. द थिंग इज दैट until I know the tense of it, जब तक इसका मैं टेंस नहीं जानता, till that time I won't be able to know that which time an action was done, when was the action done. So first of all I must know the meaning of, we can say, or I must recognize the tense के इस कौन सा tense हम लोग बात कर रहे हैं. Suppose मैं बोलता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, we are talking about present, मैं present की बात करूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ. In the same way, अगर मैं बोलूँ कि I went to school, if I say that I went to school, मैं स्कूल गया, in this tense I am talking about those actions which have taken place in past, जो कि past में हुए थे. Another sentence is that I will say I will go to school, मैं स्कूल जाऊंगा. In this tense I am talking about the future of it. हम लोग किसके बारे में बात करें? फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. मैं बोलता हूँ कि मैं स्कूल जाऊंगा. So we are having
3 ब्रांचेज ऑफ टेंस। हमारे पास टेंस के कितने ब्रांचेज है? देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ टेंस। द फर्स्ट वन दैट इज वी कैन से प्रेजेंट, मीन्स हाल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक्टिविटीज जो कि अभी होते हैं वो प्रेजेंट में होते हैं। एट दैट टाइम वी से इट इज वी कैन से विच थिंग प्रेजेंट, और वी कैन से हाल इन उर्दू वी से। नेक्स्ट वन पास्ट, पास्ट हम लोग बोलते हैं माजी को, वो काम जो पहले हुए हो, वो काम जो माजी में हुए हो, वहां पे बोलते हैं कि विच थिंग इज दैट, इट इज वी कैन से पास्ट टेंस। द नेक्स्ट वन नेक्स्ट इज फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल, इन उर्दू वी कॉल इट एज वी कैन से मुस्तकबिल, वो काम जो फ्यूचर में रोनमा होंगे, which will take place in future. For those purpose, for those actions we use which tense? We use present tense. अब मैंने आपको बता दिया कि हम लोग कहाँ पे टेंसेस यूज करते हैं, एक्शन हुआ, होगा या होता है। फॉर दैट पर्पज वी यूज डिफरेंट टेंसेस। लेकिन फिर भी इसमें एक कंफ्यूजिंग वाली बात पैदा होती है। जैसे मैं बोलता हूँ मैं स्कूल जाता हूँ, एक हमारे पास चीज़ है कि मैं स्कूल जाता हूँ, एक हमारे पास ये है कि मैं बोलता हूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट वन मैं स्कूल जाता हूँ, द सेकेंड वन मैं स्कूल जा रहा हूँ। ओके, आल्सो वी कैन हैव इन प्रेजेंट दैट इज मैं स्कूल जा चुका हूँ, एंड द कंफ्यूजिंग इंक्रीजेज एट दैट टाइम। इस टाइम क्या होता है, कंफ्यूजन इंक्रीज होता है कि स्कूल जाता हूँ, जा रहा हूँ या जा चुका हूँ। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑल द स्टेटमेंट्स। द नेक्स्ट वन मैं स्कूल जाता रहा हूँ, मैं स्कूल जाता रहा हूँ। It means that we are having how many things? We have 4 things in present. आपके पास प्रेजेंट में कितने चीजें आ गए? 4 चीजें आ गई। द फर्स्ट वन आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। एंड ऑल्सो वी कैन से आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, और मैं स्कूल जाता रहा हूँ। नाउ देयर इज द वी कैन से एट दैट टाइम द कंफ्यूजन क्रिएट्स। उस टाइम जो है आपके पास कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि विच टेंस आर वी टॉकिंग अबाउट। For that purpose, we also have divided these 3 branches into sub branches. उस पर्पस के लिए हम लोगों ने क्या किया है, टेंस को हम लोगों ने 4 कैटेगरीज में या सब ब्रांचेस में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। हाउ वी हैव डिवाइडेड देम और हाउ हैव वी डिवाइडेड देम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट दैट। इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखो, अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं, हाल की बात करते हैं, सो वी हैव डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी वी कैन से सब ब्रांचेस। देयर आर 4 सब ब्रांचेस ऑफ प्रेजेंट। आपके पास फ्यूचर के आपके पास जो प्रेजेंट है उसके हमारे पास 4 सब ब्रांचेस बनते हैं। कितने सब ब्रांचेस बनते हैं? देयर आर 4 सब ब्रांचेस ऑफ प्रेजेंट। कौन से हमारे पास? देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड आल्सो वी कैन से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट को हम लोगों ने इसको 4 सब ब्रांचेस में और हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। द नेक्स्ट वन, अगर हम लोग पास्ट की बात करते हैं, पास्ट को भी हम लोगों ने 4 सब ब्रांचेस में डिवाइड किया है। What are the sub branches of that? The first one, past indefinite tense. The next one, past continuous tense. The next one, past perfect tense. And also we can say past perfect continuous tense. आपके पास जो past का tense हो गया उसको भी हम लोगों ने 4 अलग सब ब्रांचेस में इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है। After that, आपके पास आ गया future means मुस्तकबिल। In this thing, okay, it also has been divided into, we can say 4 sub branches. We have divided it into 4 sub branches. The first one, that is we can say future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and also we can say future perfect continuous tense. So I told you that in starting of that the tense is divided into how many branches? There are 3 branches of that, and then we have divided the same 3 branches into its sub branches. हर एक जो है वो अपने सब ब्रांच में भी डिवाइड हुआ है इसमें। देखिए, I told you about present. There are 4 sub branches of the present, and also we are having 4 sub branches of past, and also we are having 4 sub branches of future. इसका मतलब क्या हो गया कि how many tenses are there? There are, we can say, 12 tenses. आपके पास कितने टेंस आएंगे? There will be 12 tenses. हमारे पास जो है वो 12 टेंसेस आएंगे। देखो, अब हम वापस थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि मीन्स विच थिंग कैन बी फॉलोड इन दैट। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं एक एक्शन की बात करता हूँ, वो एक्शन जो है वो प्रेजेंट में होता है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? प्रेजेंट। चाहे वो हमारे पास है कि मैं स्कूल जाता हूँ, या मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मैं स्कूल जा चुका हूँ, या मैं स्कूल जाता रहा हूँ। सो वी विल स्टडी दैम इन, वी कैन से, प्रेजेंट। नेक्स्ट वन, दैट इज पास्ट। ओके, मीन्स माजी। माजी को हम लोग फिर अलग अलग 4 सब ब्रांचेस में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एक एक्शन की बात करता हूँ,
आई से दैट आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता रहा था। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन एवरी टेंस एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी एवरी टेंस। हर एक टेंस को हम लोग अलग अलग स्टडी करने वाले हैं। सो यू जस्ट हैव टू remember the names of this tense. I will also tell that how to remember their names. Next is we can say future. Okay, now future is also having how many sub branches? 4 sub branches. Future indefinite tense, future continuous tense, and also we can say future perfect tense, and also we can say future perfect continuous tense. मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाता रहाऊंगा, मैं स्कूल जा चुका हूंगा, मैं स्कूल जाता रहा हूंगा. So there is we can say difference between every tense. And after this video, as I have introduced the tense in front of you people, and also I have tell you that how many sub branches are there, और इसके मैंने आपको सब branches भी बता दिए. So you just have to remember their names, and from the first one we will start it. We will start it from present indefinite tense, then past indefinite tense, and future indefinite tense. One by one we will be studying these we can say tenses. So now the thing is that how should we remember their names? It's a quite confusing thing. How should we remember their names? First of all, just we have to write the name of present, as it is its parental name is present, so we have to write its parental name in every tense. Now see, the parental name is present. We have to write, we can say we have to just draw, or we have to write 4 tenses for present. We should start it from present, 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 present. I have written present, present everywhere. As in the next one, there are we can say 4 sub branches of that. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 4 हर एक में पास्ट पास्ट लिखूंगा, पास्ट 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 एंड पास्ट. ये हमारे पास हो गए. नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. सो फ्यूचर इज आल्सो हैविंग 4 सब ब्रांचेस. देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ओवर देयर फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर एंड फ्यूचर. आप लोगों ने क्या किया, वहां पे प्रेजेंट प्रेजेंट लिखा, इसमें पास्ट पास्ट लिखा, इसमें आप लोगों ने फ्यूचर फ्यूचर लिखा. जब आप लोगों ने लिखा उसके बाद क्या करोगे, आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू राइट फ्रॉम द फर्स्ट वन. आप लोगों ने ऐसे करके क्या लिखाना है, हॉरिजॉन्टली आप लोगों ने इंडेफिनेट इंडेफिनेट सब साथ लिखना होगा. नाउ सी, प्रेजेंट पहले लिखा था, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर पहले लिखा हो तो मैंने इंडेफिनेट लिखा. तो इस तरह रो मैंने क्या किया, इस तरह मैंने क्या किया, मैंने हर के साथ इंडेफिनेट 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 लिखा. आफ्टर दैट प्रेजेंट पहले लिखा होता कॉन्टिन्यूअस मैंने लिखा, पास्ट पहले लिखा होता मैंने कॉन्टिन्यूअस लिखा, फ्यूचर पहले लिखा होता मैंने वहां पे क्या लिखा, कॉन्टिन्यूअस लिखा. द नेक्स्ट वन, अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट पहले लिखा होता मैंने परफेक्ट लिखा, पास्ट पहले लिखा होता मैंने परफेक्ट लिखा, फ्यूचर पहले लिखा होता मैंने इसका क्या लिखा, परफेक्ट लिख लिया. और अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, आखिरी वाली की, प्रेजेंट पहले लिखा हुआ था, उसका मैंने क्या लिखा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आपने इन तीनों के साथ क्या लिखना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आल्सो वी कैन से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने क्या करना होगा, वर्टिकली आप लोगों ने लिखना है 4 क्या, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, एंड आल्सो वी हैव टू राइट ओवर देयर पास्ट पास्ट पास्ट, एंड आल्सो यू हैव टू राइट फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर. मींस आप लोगों ने वर्टिकली आप लोगों ने ऐसे क्या लिखा, इनके नाम लिखे, पेरेंटल नेम लिखे, उसके बाद आप लोगों ने हॉरिजॉन्टली इंडेफिनेट लिखा, उसके बाद कंटीन्यूअस ऐसे किया, वापस उसके बाद आप लोगों ने परफेक्ट लिखा, वापस परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखा. इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, ये बहुत इजी होने वाला है. बट द थिंग इज दैट यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन इट. आप लोगों ने इस पर फोकस करना है, इंशाल्लाह बहुत ही ईजी होगा. और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप लोगों ने क्या करना होगा, इन सबको याद रखना है. और याद कैसे रखना है मैंने आपको तरीका बता दिया, इंट्रोड्यूस करवाया. अभी इंशाल्लाह आप लोगों ने क्या करना होगा, अभी आप लोगों ने क्या करना होगा, यू जस्ट हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम इट. आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है. और इस वीडियो के बाद हमारे पास पहला टेंस स्टार्ट होगा, जो हमारे पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. मैं आपको समझाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका मेन वर्ब क्या होगा, और इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.